উদয়পুরে এগলেংসি-এমএল এবং প্রতাপগড় কেন্দ্রের পুরো ডিটেলস ভিডিও রইল আজকের এই ভিডিওতে। जो मान सिंह होते हैं वो अकबर की तरफ से मुख्य सेनापति के रूप में लड़ते हैं, जो अकबर के मुख्य सेनापति होते हैं। अब इनका जैसे ये रहता है कि प्रताप का हमला होता है मान सिंह पर। जब महाराणा प्रताप मान सिंह पे अटैक करते हैं, अपने भाले से जब वार करते हैं। खमागणी अन्नदाता, मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संदेश लेकर आया। के पराक्रम को, चूना की प्रतिज्ञा को, कुंभा के वैभव को, सांगा के पुरुषार्थ को। আজকে আমাদের পেটের 10 নম্বর দিন। আমরা সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম এগলেংসি-এমএলের উদ্দেশ্যে। রাজস্থানের কৈলাসপুরীতে অবস্থিত উদয়পুর থেকে মাত্র 22 কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত এগলেংসি মন্দির। উদয়পুর থেকে এগলেংসি-এমএল যেতে মোটামুটি সময় লাগে 35 থেকে 40-45 মিনিট। এই এগলেংসি মন্দির ভগবান শিবের উৎসর্গিত 8ম শতাব্দীর একটি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় হিন্দু তীর্থস্থান। মেওয়ারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দেবতা হিসেবে এই মন্দিরের চত্বরে 108টি উপাসনালয় রয়েছে, যা তাদের জটিল স্থাপত্য এবং আওতাচর্য 50 ফুট উঁচু চতুর্মুখী কালো মার্বেলের মূর্তির জন্য বিখ্যাত। এই চমৎকার 5 ফুট চতুর্মুখী কালো মার্বেলের মূর্তিটি প্রতিটি মুখ একটি নির্দিষ্ট দিককে নির্দেশ করে: পশ্চিম ব্রহ্মা, উত্তর বিষ্ণু, পূর্ব সূর্য এবং দক্ষিণ রুদ্র অথবা শিবকে। এবং এটি নির্মাণ করেন 734 খ্রিস্টাব্দে মেওয়ারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাপ্পা রাওয়াল। এই মন্দিরটি খোলা থাকে সকাল 4:30 থেকে 7টা এবং সকাল 10:30 থেকে দুপুর 1টা এবং বিকেল 5:15 থেকে সন্ধ্যে 7:30 পর্যন্ত খোলা থাকে। মন্দিরের ভেতরে যেহেতু ছবি তোলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, তাই আপনাদের বেশি কিছু দেখাতে পারলাম না। তবে উদয়পুর গেলে এগলেংসি-এমএল দেখতে ভুলবেন না। কথা বলতে বলতে চলে এলাম প্রতাপগড় কেন্দ্র। এখানে এনটিভি, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো এবং স্ট্যাচু অফ লাইট এই 3টে প্রাইজই একসঙ্গে ধরা থাকে। আমাদের 12 জনের জন্য টিকিট নিয়েছিল 560 টাকা। প্রতাপগড় কেন্দ্র রাজস্থানের উদয়পুরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। টাইগার হিলসে অবস্থিত এই কেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি, রোবোটিক শো এবং অডিও ভিজুয়াল উপস্থাপনার মাধ্যমে মহারাজা প্রতাপ ও মেওয়ারের ঐতিহ্যকে সম্মান জানানো হয়। এখানে আপনারা বিনামূল্যে গাইড পেয়ে যাবেন। এই প্রতাপগড় কেন্দ্রের প্রধান আকর্ষণ হল কিংবদন্তির যোদ্ধা রাজার 57 ফুট উঁচু একটি সুউচ্চ মূর্তি। এই প্রতাপগড় কেন্দ্রের সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে মিউজিয়ামের যে ব্যবস্থাপনা। সবাইকে নিয়ে গিয়ে একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে তারপর বিবরণ দেওয়া হচ্ছে মহারাণা প্রতাপ মিউজিয়ামের মতনই। এখানে বিনামূল্যে গাইড পাওয়া যায় এবং সেই গাইড
সবাইকে খুব সুন্দরভাবে নিয়ে যাচ্ছেন। এখানে পুরো ব্যাপার এই অডিও ভিজুয়ালের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে। এখানে পুতুল তৈরি করা রয়েছে এবং আসছে অডিও বাজছে, দারুণ লাগছে। এখানে কেউ যদি মেয়রের ইতিহাস এবং ঘটিঘাটি যুদ্ধ বর্ণনা কেউ যদি না জানে তাকে এত সুন্দরভাবে রোবোটিক চিত্রকর্ম এবং অডিও ভিজুয়ালে সেট আপ করা আছে, এত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে মনের ভেতর একটা আলাদা আগ্রহ তৈরি হবে। तो ये जो आपने देखा था अंदर प्रवेश करा और सगड़ा रास्ता, ये हल्दी घाटी दरा बना हुआ था। और इस दरे की विशेषता ये थी कि उसमें से एक बार में घोड़ा और एक सैनिक प्रवेश करता है। सबके साथ में लेके चलूंगा। मम्मी तो पहला दोस्त छोड़ी। देखिए आप, ये वाला दृश्य जो अपन देख रहे हैं, ये दृश्य पूरा रक्ततलाई का दृश्य रहता है। और रक्ततलाई इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर खून का पूरा एक तालाब बन जाता है, इस कारण से इसको रक्ततलाई के रूप में जाना जाता है। जो इस प्रकार का दृश्य था। लेकिन आपने सुना होगा कि महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े के बारे में, ये तो आप सभी को जानकारी होगी कि महाराणा प्रताप का चेतक, लेकिन इसमें से जो राम प्रसाद नाम का जो हाथी था, ये वाला हाथी, ये जो राम प्रसाद नाम का जो हाथी था, ये हाथी बहुत बलशाली, बहुत ताकतवर हाथी था। जिस हाथी ने मुगल आक्रमणकारियों के 14 हाथी को मार गिराया था। जब मुगल आक्रमणकारियों के 14 हाथी को मार गिराया तो ऐसे बलशाली से ताकतवर हाथी को देखने के लिए किसका मन नहीं करता है। तो अकबर ने अपने सैनिकों द्वारा फरमान जारी किया गया कि इस राम प्रसाद नाम के हाथी को हकीम का सूरी का वध करते थे, उनको मार देते बेलोल खां। तो उस समय महाराणा प्रताप अत्यधिक गुस्से में हो जाते हैं। और जब ये गुस्से में हो जाते हैं तो वो अपनी तलवार के एक ही वार से, एक ही झटके से जिरह बख्तर सहित, मतलब जो ऊपर कवच बना होता है उसे कहते हैं जिरह बख्तर, जो लोहे का कवच बना होता था पूरा, और उस कवच सहित एक ही बार में एक ही झटके से घोड़े सहित 2 फाड़ कर देते हैं। इतना गुस्सा होता महाराणा प्रताप का उस समय जब बेलोल खां हकीम का सूर को मार देते तब। लेकिन आप सभी लगाई जाती थी, लेकिन ये विशेष तौर पर नकली सूर लगाई जाती थी। और नकली सूर इसलिए लगाते थे कि महाराणा प्रताप की जो मेवाड़ी सेना थी उनके पास घोड़े थे और मुगल सैनिक थे उनके पास हाथी थे। तो जब हाथी उस पर अटैक करने जाएगा तो अपनी बिरादरी का अपना बच्चा समझकर इसे उस पर अटैक नहीं करे, इस कारण से ये नकली सूर लगाई जाती थी और नकली सूर लगाकर सेना को परमिट किया जाता था। तो ये कारण था इनके सूर लगाने का, नकली सूर वास्तविक नहीं थी। फिर आगे बताइएगा आप, इसको देखिए जैसे कि हल्दी घाटी दर्रा, दर्रे का मतलब यह था कि दोनों पहाड़ों के बीच के ऐसे सकड़े रास्तों को दर्रा कहा जाता था। और हल्दी कलर की मिट्टी होने के कारण इसको हल्दी घाटी नाम दिया गया था। जो हल्दी घाटी होता है 18 जून 1576 को 1576 को हल्दी घाटी होता है। ये दृश्य अगर आज वर्तमान में देखना चाहते हो तो वहाँ पर इस टाइप का नहीं बना हुआ है, अभी वहाँ पर इस तरह की मानसिंह का दृश्य ये वाला। और जैसे मैंने आसफ खान मानसिंह का दृश्य बोला था, आपके मन में प्रश्न आया होगा कि आसफ खान मानसिंह थे को दिए। और लास्ट राजधानी नहीं थी वो चावड़, और ये आवरगढ़ दुर्ग यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है जाड़ो खलासे में। और वहीं पर एक कमलनाथ महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। तो उस कमलनाथ महादेव जी के मंदिर पर महाराणा प्रताप अपनी पूजा अर्चना करते थे। और कुछ वर्ष इनकी संघर्षकालीन राजधानी रहती है आवरगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप। फिर वहां से पलायन कर चावड़ चले जाते हैं और चावड़ में इनकी 12 वर्ष संघर्षकालीन राजधानी रहती है महाराणा प्रताप जी की। और 12 वर्ष संघर्षकालीन राजधानी रहने के बाद में अंत में चावड़ में ही 19 जनवरी 1557 राज सिंह जो होता है वो चैत्र पूर्णिमा को चारुमती शिवा को लौटते हैं। तो ये घटना रहती है जो 17 साल की उम्र में करके दिखाते हैं। तो अभी इनके बारे में अपन ईस्वी सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अपने अधीन कर लिया। उसका पुत्र खिंजर खान 1316 ईस्वी तक चित्तौड़ में रहा। फिर अपने विश्वस्त सिरोही के राजा मालदेव को चित्तौड़ सौंप दिल्ली चला गया। पूरे 23 वर्ष चित्तौड़ पराधीन रहा। उसे पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त किया सिसोदा के हम्मीर ने। हुआ यूं कि एक दिन सिसोदा के युवराज अरी सिंह शिकार का पीछा करते हुए एक खेत में घुसने लगे। तब एक युवती ने उन्हें रोका। अरे अरे, दिखता नहीं, कहाँ घुसे जा रहे हो मेरे खेत में? मेरा खेत खराब हो जाएगा। मैं तो सुअर का पीछा कर रहा हूँ, मुझे उसका शिकार करना है। तो वहीं रुके रहो, मैं आपका शिकार ला देती हूँ।
और देवी नामक उस युवती ने सूअर को मार गिराया और उसे अरी सिंह के सामने ले आई। अरी सिंह उसकी वीरता पर मुग्ध हो गया। उन्होंने देवी से विवाह कर लिया। इन्हीं की कोख से वीरवर हम्मीर का जन्म हुआ। बड़ा ही बहादुर बच्चा 12 वर्ष की उम्र में डकैत मुंजा बालेजा की गर्दन काट कर ले आया और उसे अपने चाचा अजय सिंह को भेंट किया। लो चाचा, मैंने मुंजा बालेजा का खात्मा कर दिया है। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। तूने तो असंभव काम कर दिया है। आज से तू सिसोदा का उत्तराधिकारी है। नहीं चाचा, मेरा लक्ष्य तो कुछ और है। मैं चित्तौड़ को शत्रुओं से मुक्त कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए तुम सैनिक कार्रवाई प्रारंभ करो और चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे मुक्त कराओ। हम्मीर ने योजना पूर्वक सेना का गठन किया। उसे बरबड़ी देवी ने आशीर्वाद दिया। जाओ मेरे पुत्र, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें चित्तौड़ राज्य प्राप्त होगा। तुम्हें मालदेव की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, उसे तुम स्वीकार कर लेना। मेरा पुत्र बारू 800 घोड़े लेकर आएगा। तुम उसकी सहायता से चित्तौड़ प्राप्त कर लोगे। हम्मीर ने मालदेव की पुत्री से विवाह किया। पत्नी के सुझाव पर उसने दहेज में प्रधानमंत्री मौजीराम मेहता को मांग लिया। दोनों ने युक्ति पूर्वक चित्तौड़ प्राप्त कर लिया। अपने पूर्वजों के चित्तौड़ को प्राप्त कर हम्मीर अभिभूत हो उठे। उन्होंने मातृभूमि को प्रणाम कर किले में प्रवेश किया। चित्तौड़ पर महाराणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य का शासन था। दासी पुत्र बलवीर ने विक्रमादित्य व उदय सिंह को मारकर शासन हस्तगत करने का षड्यंत्र रचा। एक काल रात्रि को उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब उसे उदय सिंह की हत्या करनी है। यह समाचार धायमा पन्ना को प्राप्त हुआ। धायमा, आपने सुना? बलवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है। क्या? ये कैसे हुआ? अब क्या होगा एकलिंगनाथ? माँ, अब तो वो उदय सिंह को मारने आ रहा है। उदय सिंह को मारने? नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ करना होगा। क्या करना होगा माँ? तू उदय सिंह को लेकर वारी भाई के यहाँ चली जा। किसी को पता नहीं चले, ये ध्यान रखना। और हाँ, चंदन को तुरंत मेरे पास भेज देना। जा, जल्दी कर। कुछ समझे आप? इस महिमामयी मां ने मेवाड़ के भविष्य की रक्षा करने, उदय सिंह को बचाने के लिए अपनी कोख उजाड़ने का निर्णय कर लिया है। पन्ना ने उदय सिंह के समवयस्क अपने 15 वर्षीय पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया और काल की प्रतीक्षा करने लगी कि 1536 ईस्वी सन में बसंत पंचमी की रात में बलवीर की लपलपाती तलवार चंदन का खून पीने आ थमकी। बता पन्ना, कहां है उदय सिंह? मैं उसका खून पीने आया हूं। नहीं, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आप इस निर्दोष बालक को मत मारिए। रुक जाइए। चल हट! आज उसे कोई भी बचा नहीं सकता। ये क्या किया बलवीर जी? उदय सिंह, उदय सिंह। चढ़ रहे मस्तक अनेकों मातृभू की वेदिका पर मैं अभागिन भेंट क्या दूं? एक चंदन मेरा चढ़ा लो, एक चंदन मेरा चढ़ा लो। दिल्ली की सल्तनत औरंगजेब के हाथ में आ गई। उसकी क्रूरता रंग दिखाने लगी। उसने अत्याचारों का अंबार लगा दिया।
मंदिर तोड़े, मां बहनों की इज्जत लूटी, जबरदस्ती धर्मांतरण किया। वृंदावन में कृष्ण भगवान के मंदिर को तोड़ने का जब उसने प्रयास किया, तब गोसाई जी भगवान की मूर्तियां लेकर सुरक्षित स्थान की ओर चल पड़े। उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। महाराणा शाह की जय हो। हमें राजपुताने में कहीं भी सहायता प्राप्त नहीं हुई है। सभी राजा औरंगजेब के भय से श्रीनाथ जी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप ही कुछ उपाय करें। आप निश्चिंत रहें गोसाई जी, हमारे सौभाग्य से श्रीनाथ भगवान मेवाड़ में पधारे हैं। आप सिंघाड़ गांव में भव्य मंदिर बना, उसमें श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा करें। इतनी सारी व्यवस्था कैसे हो पाएगी महाराणा साहब? उसकी चिंता आप ना करें। बनास नदी के किनारे मंदिर का निर्माण कर ठाकुर जी की सेवा करें। मैं सारी व्यवस्था कर देता हूं। और अगर औरंगजेब ने यहां आक्रमण कर दिया तो? मेवाड़ की ओर देखने का साहस उसमें नहीं है। अगर वो इधर आया तो मेवाड़ के वीर उसे धूल चटा देंगे। मेरे 1 लाख सैनिकों के सिर कटने के बाद ही औरंगजेब यहां पहुंच पाएगा। श्रीनाथ द्वारा में महाराणा राज सिंह ने भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। अब औरंगजेब की कैद से भाग छूटे जोधपुर के वीर दुर्गादास राठौड़ को शरण दी राज सिंह ने। घड़ी खम्मा महाराणा साहब, पधारे दुर्गादास जी। मेवाड़ में आपका स्वागत है। औरंगजेब की कैद से जोधपुर के कुंवर अजीत सिंह को बचा कर लाया हूं। अन्य किसी ने तो सहायता नहीं की, अब आपका ही सहारा है। सहारा तो प्रभु एकलिंगनाथ का है, आप निश्चिंत रहें। कुंवर अजीत सिंह की संपूर्ण सुरक्षा मैं करूंगा। औरंगजेब मेवाड़ की ओर देखने की हिम्मत तक नहीं करेगा। महाराणा राज सिंह ने दुर्गादास को आश्वासन देकर उन्हें अभय प्रदान किया। प्रजावत्सल इस महाराणा ने अकाल राहत के कार्यों के तहत राजसमंद झील का निर्माण 1668 ईस्वी में करवाया। उस समय 1 करोड़ रुपए की इसकी लागत आई और 1679 ईस्वी में हुए औरंगजेब के आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देकर उसे दक्षिण की ओर भागने को विवश कर दिया। 1680 ईस्वी में देववसात ओड़ा ग्राम में महाराणा राज सिंह का स्वर्गवास हो गया। ईस्वी सन 1659 में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर औरंगजेब ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा। चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा। पत्र लेकर संदेशवाहक राज सिंह के दरबार पहुंचा। क्षमा गणी अन्नदाता, मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संदेश लेकर आया हूँ। क्या लिखा है राजकुमारी ने? मैं चारुमती आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब आप औरंगजेब से मेरी रक्षा करें, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। इस परिस्थिति में चारुमती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है रतन सिंह जी। जी हुक्म। आप 50,000 की सेना लेकर आमेर तक जाएं, वहां औरंगजेब की सेना को रोकें। तब तक मैं चैत्र पूर्णिमा को चारुमती से विवाह कर उन्हें लेकर आता हूं। जी हुक्म। रतन सिंह सलूमर के चुंडावत सरदार हैं। वे अपनी नवविवाहिता पत्नी हाड़ी रानी इंद्र कुंवर से विदा लेने उनके महल में गए। प्रिय, महाराणा शाह ने हमें युद्ध में जाने का आदेश दिया है, इसलिए हम आपसे विदा लेने यहाँ आए हैं। आप विजयी होकर लौटे, यही मंगल कामना है मेरी। किंतु रानी, युद्ध में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर तुम्हारा क्या होगा?
आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए पधारिए। हम हिंदू स्त्रियां अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानती हैं। हम उसका सहर्ष पालन करेंगी। तो ठीक है, अब हम प्रस्थान करते हैं। मोहग्रस्त रतन सिंह ने प्रस्थान से पूर्व राजपुरोहित को कहा, पुरोहित जी, हाड़ी रानी से कहो कि हम उनकी कोई निशानी युद्ध में साथ ले जाना चाहते हैं। राजपुरोहित ने हाड़ी रानी को समाचार दिया। पति की मोहग्रस्त मानसिकता भांपकर उन्हें कर्तव्य पथ का बोध कराने हेतु हाड़ी रानी ने अनूठा निर्णय किया। रणबीर, तू मेरी सहेली है। ठाकुर साहब को मेरी ये अनमोल निशानी भेंट कर देना। और हाड़ी रानी ने अपना सिर काट दिया। थाली में चुनरी से ढके हाड़ी के सिर को देख रतन सिंह हतप्रभ रह गए। पत्नी के बलिदान से अभिभूत हो उन्होंने उस मुंड को माला के रूप में पहन लिया और आमेर के पास हुए युद्ध में औरंगजेब की सेना को परास्त कर अपना बलिदान दे दिया। इस दंपत्ति के बलिदान द्वारा ही महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह कर लौट सके। मोहग्रस्त हो गए चूड़ावत, हाड़ी से मांगी सेना ने, पति को प्रेरित करने को सिर काट दे दियो क्षत्राणी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। 12 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना की हार हुई थी। तब अकबर स्वयं प्रताप को पराजित करने के उद्देश्य से मेवाड़ में आया, किंतु उसे भी असफलता ही मिली। तब उसने शहबाज खान को 3 बार भेजा, उसको भी मुंह की खानी पड़ी। तो उसने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। उस बेचारी की भी बड़ी फजीहत हुई। प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने उनके डेरे पर आक्रमण कर उनकी बेगम आनी खान व पूरे परिवार को ही उठा लाया। ये देखकर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को समझाया। बेटा, तूने हमारी हिंदू संस्कृति के विरुद्ध काम किया है। हम हिंदू लोग पराई स्त्री को मां के रूप में देखते हैं। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और तू इन्हें उठा लाया। दादा हुजूर, मैंने ये सब नहीं सोचा था। निसंदेह मुझसे अपराध हुआ है, किंतु मैंने इनके साथ कोई अभद्रता नहीं की है। ठीक है पुत्र, अब तुम इन्हें ससम्मान इनके डेरे पर पहुंचा दो और इनसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना भी कर लेना। बहन जाओ, मैं तुम्हें आदर सहित विदा करता हूं। मुझे क्षमा कर देना। प्रताप के इस व्यवहार से भाव विभोर हो बेगम अपने डेरे पर लौट गई और वहां अपने पति अब्दुल रहीम खान खाना से कहने लगी, हमारे शत्रु होकर भी महाराणा प्रताप ने मेरे साथ बहन के समान व्यवहार किया है। प्रताप मनुष्य नहीं है बेगम, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। काश अकबर भी प्रताप के श्रेष्ठ चरित्र को समझ पाता। वो क्या समझेगा, उसे तो मीना बाजार के कारनामों से ही फुर्सत नहीं है। सुना नहीं आपने? क्या? मीना बाजार में उसने प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी का हाथ पकड़ लिया था। किरण देवी ने उसे नीचे गिराकर उस पर कटार तान दी। क्षमा याचना के साथ माँ माँ कहने लगा था अकबर, तब कहीं छोड़ा उसने। अकबर और प्रताप के चरित्र में जमीन आसमान का फर्क है बेगम। धन्य प्रताप, तुम धन्य, तूने अपने चरित्र बल से मुझे जीत लिया है। चलो बेगम, अब यहाँ प्रताप से युद्ध के लिए रुकने का कोई अर्थ नहीं है। हमें अपने वतन को लौट जाना चाहिए। प्रताप के उज्जवल चरित्र ने जीत लिया खान खाना को। कीर्ति अमर रहे तुम्हारी, आशीष शुभ दे चल दिया वो। प्रताप की जय। हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने आवरगढ़ को अपना संघर्षकारी केंद्र बनाया। भामाशाह उनके भाई ताराचंद ने मालवा क्षेत्र को लूटकर
तथा अपने पूर्वजों के संचित धन को लेकर उसे प्रताप को समर्पित करने के लिए सितंबर 1578 ईस्वी में वे आवरगढ़ पहुंचे। प्रणाम महाराणा साहब, मेरा और भाई ताराचंद का सादर प्रणाम। आओ भामाशाह, आओ, कहो क्या समाचार है? हम आपकी सेवा में 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण अशर्फियां लेकर आए हैं, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। धन्य भामाशाह, तुम धन्य हो। संकट की इस घड़ी में तुम ये धन संपदा लाए हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों की तो आज महती आवश्यकता है। नहीं महाराणा साहब, इसमें धन्यता की कोई बात नहीं है। हमने तो मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। देखा हमने भामाशाह का समर्पण व कर्तव्य निष्ठा। इन्होंने प्रताप को केवल धन ही नहीं दिया है, अभी तो विजयादशमी 1582 ईस्वी में प्रताप के साथ मिलकर इन्होंने व अमर सिंह ने दिवेर थाने पर आक्रमण किया। अकबर का चाचा सुल्तान खान वहां का किलेदार था। अमर सिंह ने भाले का वार कर उसे मार गिराया। जब घायल सुल्तान खान ने पानी मांगा तो प्रताप ने मानवीयता दिखाकर उसे जल पिलाया। पानी, पानी। ये लीजिए खान साहब, पानी पीजिए। महाराणा साहब, आप शत्रु पर भी इतनी दया दिखा रहे हैं, और उधर अकबर ने जो चित्तौड़ में 30,000 निर्दोष लोगों का कत्लेआम करवाया था। हम हिंदू हैं भामाशाह, हमारा धर्म हमें दूसरे की सेवा करना सिखाता है, और फिर मरने के बाद कौन मित्र और कौन शत्रु। धन्य है आपकी इतनी मानवीयता के कारण ही अकबर आपको परास्त नहीं कर सका। अब तो आपके चरित्र बल के समक्ष तो वो स्वयं ही हार गया है। प्रताप की छापामार युद्ध पद्धति के कारण मुगल सेना भाग गई। प्रताप ने मेवाड़ के सभी ठिकानों को अकबर की मुगल सेना से पूर्ण स्वतंत्र करा लिया। अब प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाकर पुनर्निर्माण का नूतन उदाहरण प्रस्तुत किया, और न केवल युद्ध काल में अपितु 12 वर्षों के इस शांति काल में भी महाराणा प्रताप ने महानायक की तरह नेतृत्व किया। जीवन में पूर्णता प्राप्त कर यही चावंड में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया था। आजादी का कीमत हरदम चलता है मेवाड़ में, नहीं बुझा ये दीपक वर्षा आंधी की बौछार में। हल्दी घाटी के आंगन में शुरू की हुंकार उठी, आजादी की रक्षा के हित की। उनके साथियों ने क्रांतिकारियों के लिए एकत्रित धन में से कुछ धन उनके मां को भेज दिया। आजाद को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने साथियों से कहा, देश कार्य के लिए एकत्रित धन को मेरी मां के लिए भेजना अनुचित है। अपना जीवन लगाना है, हमें केवल और केवल उसी की आराधना करनी है। मित्रों, देखा एक पुत्र अपनी भारत मां की कैसी अद्भुत आराधना करता है। अनादिकाल से ही हम अपने देश की इसी भांति मां के रूप में पूजा करते आए हैं। यह साक्षात जगदम्बा है, यह धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, मातृभूमि है तथा यह हिंदू भूमि है। इसके लिए जीवन समर्पण करना ही जीवन की सार्थकता है। आओ हम इस जगत जननी के विराट रूप का दर्शन करें। यह अफगानिस्तान है जो कभी गांधार था, ईरान आर्यन था, और संपूर्ण पाकिस्तान हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति का केंद्र रहा है।
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता तथा हिंगलाज मंदिर हमारे प्रमुख केंद्र थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय तो दुनिया को शिक्षा देने वाला प्रमुख केंद्र था। नानक का जन्म ननकाना में हुआ। मुल्तान में प्रहलाद की रक्षा हेतु नरसिंह प्रकटे। झूलेलाल, दाहड़ सेन, गुरु अर्जुन देव, हकीकत राय की लीला भूमि है यहाँ। स्वामी राम तीर्थ लाहौर में पैदा हुए। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी लाहौर में हुई, किंतु दाह संस्कार पंजाब के हुसैनवाला में हुआ। और यह अमृतसर है जिसके चौथे गुरु रामदास ने नींव रखी और पांचवें गुरु अर्जुन देव ने इसे बनवाया। श्रद्धानंद, रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा व बंदा बैरागी और सिख गुरुओं की कर्मभूमि है ये पंजाब। हिम आच्छादित हिमालय हमारी साधना स्थली है। कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का निवास स्थान है। चीन की गिद्ध दृष्टि ने इसे नोच लिया है, हमें इसे फिर से प्राप्त करना है। भारत का मुकुट कश्मीर हमारा अविभाज्य अंग है। अमरनाथ, वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि पवित्र तीर्थ यहीं पर हैं। यह देवभूमि है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं का आराध्य स्थल है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है। बिहार में पाटलिपुत्र हमारी प्राचीन नगरी है। यहाँ की पावन भूमि में भगवान बुद्ध ने लीलाएं की हैं। बोध गया में उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीर्थंकरों की पावन परंपरा का निर्वहन कर भगवान महावीर ने पावापुरी में अपनी एक लीला पूर्ण की। यहाँ अनेक जैन तीर्थ स्थित हैं। नालंदा हमारा प्राचीन विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी ने जब यहाँ के पुस्तकालय को जलाया तो वह 6 मास तक चलता रहा। कितना विशाल रहा होगा ये पुस्तकालय। उत्तर प्रदेश में गोरक्षपीठ एवं प्रयागराज हमारे प्रमुख तीर्थ हैं। यहाँ रामानंद, रैदास, वाल्मीकि और तुलसी जैसे श्रेष्ठ संत पैदा हुए हैं। यहाँ हिंदुओं के आराध्य स्थल अयोध्या, मथुरा तथा काशी पर विदेशी मुगलों ने कब्जा कर मस्जिदें बना दी। इन मंदिरों की रक्षा के लिए अनेक युद्ध हुए। लाखों हिंदुओं ने बलिदान दिए। हमारे पुरुषार्थ से आज उनका अस्तित्व शेष है, किंतु पूर्ण रूपेण ये स्थान प्राप्त कर मंदिर का निर्माण होना बाकी है। लाखों हिंदुओं के बलिदान को स्मरण कर यह कहना ही होगा, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, महानदी तथा कावेरी हमें पवित्र करती हैं। इसमें से सरस्वती आज भी धरती के अंदर प्रवाहित हो रही है, जिसके किनारे हमारी प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था। इसके वैज्ञानिक प्रमाण मिल गए हैं। यह ब्रह्म सरोवर है।
यहाँ के कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ था। पूर्वांचल भी महाभारत कालीन संबंधों का हमें स्मरण कराता है। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी अरुणाचल की थी। अरुणाचल में परशुराम कुंड हमारा प्राचीन तीर्थ है। दीमापुर हिडिंबापुर था। हिडिंबा भीम की पत्नी थी और यह गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी मंदिर प्राचीन शक्तिपीठ है। लाचित बड़फुकन ने 17वीं शताब्दी में मुगलों के दांत खट्टे किए थे। यहाँ शंकर देव की भक्ति व रानी गाइडिंग नल्लियों की देशभक्ति का स्मरण होता है। बंगाल का दक्षिणेश्वर काली मंदिर रामकृष्ण और विवेकानंद का स्मरण कराता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चैतन्य महाप्रभु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रविंद्रनाथ ठाकुर ने यही भारत मां की आराधना की थी। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर सेवा समरसता का संदेश देता है। भुवनेश्वर, कटक, कोणार्क का सूर्य मंदिर व चिल्का झील यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। खारवेल, गोपबंधु दास तथा सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा में हुआ था। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर विष्णु तीर्थ है तथा श्री शैलम शिव तीर्थ है। यही गोदावरी के तट पर निम्बार्काचार्य प्रकट हुए थे। रुद्र मांबा, मुसुर्ली नायक और अल्लूरी सीताराम राजू यही पैदा हुए थे। दुनिया के महानतम विजेताओं में से कंबू, कौंडिल्य और तेजस्वी राजेंद्र चोल तथा रमण महर्षि, त्यागराज, नायनमार, आलवार व कंब आदि संत इसी तमिल धरती पर पैदा हुए थे। मीनाक्षी मंदिर, श्रीरंगम मंदिर एवं गंगा समान कावेरी तमिलनाडु के पवित्र तीर्थ स्थान हैं। पौंडीचेरी में श्री मां व महर्षि अरविंद का आश्रम हमें अखंड भारत का स्मरण कराता है। भगवान राम का रामेश्वरम धाम हमारी आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहीं पर राम ने लंका जाने हेतु राम सेतु पुल का निर्माण करवाया था। 17 लाख वर्ष पुराना यह सेतु हमारी प्राचीनता की गाथा कह रहा है। এই মন্দিরটির নাম হলো ভক্তি ধাম অথবা ভক্তি মন্দির। এই মন্দিরটি প্রতাপগড় কেন্দ্রের মধ্যেই অবস্থিত। এই মন্দির চত্বরে 9টি ছোট মন্দির রয়েছে, যেগুলি মেয়রের অংশে বিশিষ্ট। মন্দিরগুলি শ্রদ্ধেয় দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। এই চত্বরে একটি প্রধান আকর্ষণ হল ভারত মাতা মন্দির। এখানে দেবীর একটি 12 ফুট উঁচু ধাতব মূর্তি, 71টি সিঁড়ি, উপরে অবস্থিত একটি গর্ভগৃহ এবং নিচে একটি বিশেষ ধ্যান কক্ষ রয়েছে। এই মন্দিরটি প্রতিদিন সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত খোলা থাকে। আমরা মন্দিরটি দেখে নিয়ে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমাদের গাইড বললেন এখানে একটি থিয়েটার শো আছে, থিয়েটার হল আছে, সেখানে একটি শো হয়। এই শোটি দেখে যেতে। এই শোটিতে মূলত মেয়রের রাজবংশের কথা এবং হন্দিঘাটি যুদ্ধ এবং বিশেষত একলিঙ্গি এমএলএ সম্পর্কে বলা হয়।
सांगा और प्रताप यहाँ, राज सिंह सा शेर यहाँ, बप्पा हमनीर की परिपाटी, धन्य हुई पावन माटी, जहां जली जौहर ज्वाला, कर में प्रण विजयी भाला, एक लिंग का जयकारा, महाकाल तक भी हारा, इसके हर पत्थर पत्थर में जाग रहा बलिदान है, ये मेवाड़ महान है, ये मेवाड़ महान है। सुना आपने ये गौरव गान, मातृभूमि की वंदना। मैं एक लिंगनाथ हूं, मैंने अपनी आंखों से ये गौरव घटते देखा है। मैं 1300 वर्षों के इतिहास का साक्षी हूं। मैंने बप्पा को काबुल तक भगवा फहराते देखा है। मैंने सतीत्व की रक्षार्थ हजारों देवियों को अग्नि स्नान करते देखा है, और देखा है हम मीर के पराक्रम को, चूना की प्रतिज्ञा को, कुंभा के वैभव को, सांगा के पुरुषार्थ को, और मैंने देखा है मीरा की भक्ति, प्रताप की शक्ति को, पन्ना के त्याग, भामाशाह के दान को, चेतक की स्वामी भक्ति और हाड़ी के बलिदान को। किस किस का नाम गिरा, इस माला में अनेक अनुपम मोती है। ईश्वर, हल्दी घाटी में महासंग्राम हुआ। हल्दी घाटी के दर्रे से निकलकर प्रताप सेना का प्रथम आक्रमण मुगल सेना झेल नहीं पाया और 6 कोस तक भाग गई। प्रताप के वीरों ने कोहराम मचा दिया। हकीम खां सूरी, रामशाह तंवर, झालावान आदि बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। निहत्तर खां ने ढोल बजाकर मुगलों को रोका और अब आ गए खमनोर ग्राउंड में। भीषण युद्ध हुआ, चारों ओर लाशें ही लाशें, रक्त का तालाब बन गया। प्रताप का शौर्य देखते ही बनता था। बहलोल खां को तलवार के एक ही बार से जिन्हें बख्तर वो घोड़े सहित चीर दिया, और उनका 32 किलो का भाला, वो भाला नहीं, लपलपाती ज्वाला, उसने मान सिंह के हौदे। এই শোটি অসাধারণ লাগলো, এক কথায় অনেক গৌরব কিন্তু মানে মনের মধ্যে থেকে যাওয়ার মতন। আপনারা যদি উদয়পুরে আসেন তাহলে অবশ্যই অনেক গৌরব কেন্দ্র দেখতে ভুলবেন না। তো আমরা হোটেলে ফিরে এসেছি, এখন সন্ধে হয়ে গেছে, আমরা মার্কেটিং করতে এসেছি, কারণ আমরা কালকে উদয়পুর ছেড়ে আমরা বেরিয়ে যাবো আজমির এবং পুষ্করের উদ্দেশ্যে। তবে আমরা আজমিরের রাত্রি যাপন করবো না, আমরা পুষ্করে থাকবো। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন।